Hello students, welcome to the next video of फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आज का हमारा टॉपिक थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की इन डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करेंगे। जैसे कि 6 टाइप की थ्योरी मैंने इसमें मेंशन की है। सबसे पहली थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये थ्योरी जैसा कि नाम से क्लियर है, दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी को डिस्कस करेंगे अभी। जैसा कि आपके सामने मेंशन है, एन एंटरप्रेन्योर एक्ट्स ड्यू टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की वजह से काम करता है। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज़ हिज डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक गेन्स। एक एंटरप्रेन्योर की ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है, जो उसको इंड्यूस करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है अपना एक्टिविटी, अपनी एफर्ट्स करने के लिए। दैट ड्राइविंग फोर्स इज़ हिज डिज़ायर फॉर इकोनॉमिक गेन्स। क्योंकि अगर इकोनॉमिक गेन होंगे तो एंटरप्रेन्योर और ज़्यादा मोटिवेट होगा, और ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा, और ज़्यादा इंड्यूस होगा कि वो बिजनेस से रिलेटेड फेवरेबल टास्क को परफॉर्म करे। नेक्स्ट इज़ देयर सीकर ऑफ profitable opportunities. Such entrepreneurs emerge due to incentives and economic gain. When an entrepreneur realizes that he can make the gains by purchasing or producing goods at low prices and by selling them at higher prices, he will tend to act. तभी वो उसको अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करता है। So the main driving force according to this theory is his desire for economic gains. In short, I can say that an entrepreneur, according to this theory, an entrepreneur is a seeker of profitable opportunity. A typical entrepreneur, according to the definition, the person who discovers opportunities at low prices and sells the same at high prices because of interpersonal, intertemporal, and interspatial demands. तो इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की वजह से ही एक्ट करता है, काम करता है। उसका ड्राइविंग फोर्स इकोनॉमिक गेन से होने वाली डिज़ायर है, सीकर ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनकी प्राइम मोटिवेटर होती हैं। प्रॉफिट्स आर द ड्राइविंग फोर्स एंड इज़ ए सफिशिएंट कंडीशन ऑफ ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इकोनॉमिक थ्योरी, obviously this is based on the economic point of view, economic aspect of the entrepreneurship. The main supporters of this theories are, इस थ्योरी के मेन सपोर्टर G.F. Papanch एंड J.R. हैरिस हैं। इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक थ्योरी, व्हाट इज इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? अकॉर्डिंग टू G.F. Papanch एंड J.R. हैरिस, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आर द प्राइम मोटिवेटर। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड प्रॉफिट आर द driving force and is a sufficient condition of origin of entrepreneurship. So this is the first theory of entrepreneurship, which is based on the point of view of economic aspect. Second is their sociological theory or theory of social change. ये theory entrepreneurship की, that is based on the sociological point of view, इसीलिए इसका दूसरा नाम रखा गया। It is also called theory of social change. It was advocated by Everett Hagen. Everett Hagen ने इसको advocate किया। He advocated the sociological theory of entrepreneurship and he has given a psychological explanation for the emergence of entrepreneur as a high achiever and a creative problem solver. उसकी definition भी मैंने Everett Hagen की definition mention की है इसमें। When a person feels that his status or respect has been withdrawn, he feels hurt and reacts to regain his lost status or respect by creatively solving the problems of his social group. So यहाँ पर यही दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखें। सोशलॉजिकल पॉइंट में यही कहना चाहता है वो कि एक पर्सन जब फील करता है कि उसका स्टेटस और रिस्पेक्ट विड्रॉ कर ली गई है, ही फील्स हर्ट एंड रिएक्ट्स to regain his lost status or respect by creatively solving the problem of his social group. So the main driving force in an entrepreneur, according to this theory, is the withdrawal of status or respect, that is social change. So the driving force of an entrepreneur
इज़ द विड्रॉल ऑफ स्टेटस और रिस्पेक्ट, यही उसकी ड्राइविंग फोर्स है। अगर आप उसके स्टेटस और रिस्पेक्ट को विड्रॉ कर लेंगे, इट विल बी एन इम्पॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स कि वो एंटरप्रेन्योर अपने उस रिस्पेक्ट और स्टेटस को रीगेन करने के लिए रिएक्ट करता है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी एफर्ट्स करता है। दिस फीलिंग ऑफ डेप्रीवेशन एंड विल टू रीगेन ड्राइव्स हिम टू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़। यही फीलिंग जो डेप्रीवेशन की है, यही उस एंटरप्रेन्योर को ड्राइव्स को फोर्स करती है कि वो अपने इस स्टेटस को, इस रिस्पेक्ट को रीगेन करे और अपनी एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। हेगन कंसीडर्स विड्रॉल ऑफ स्टेटस, कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में हेगन ने कंसीडर किया कि आपको एंटरप्रेन्योर के स्टेटस को विड्रॉ कर लेना चाहिए, जैसे डिसप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल ग्रुप बाय अनदर ग्रुप, लाइक inconsistency of status symbols with a changing distribution of economic power, and in case of non-acceptance of expected status or migration to a new society. So sociological theory, जैसा कि आपके सामने मैंने मेंशन किया है, that is based on the social change of an entrepreneur. Next is their theory of cultural values. तो जैसा आप देख रहे हैं, नाम से क्लियर है, थ्योरी ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। ये थ्योरी क्या पोस्टुलेट करती है? दिस थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट एंटरप्रेन्योरशिप एमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। यहाँ पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप एमर्ज करती है एज ए रिजल्ट ऑफ कल्चरल वैल्यू। द मॉडल पर्सनैलिटी ऑफ ए मैन इज शेप्ड बाई प्रिवेलिंग कल्चर इन ए सोसाइटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक एंटरप्रेन्योर की पर्सनैलिटी शेप अप होती है बाय द प्रिवेलिंग कल्चर इन द सोसाइटी, सच एज ए चाइल्ड लेयरिंग एंड स्कूलिंग प्रैक्टिसेस। सो व्हाट दिस थ्योरी सेज दैट चेंजेस इन सोशल वैल्यूज will change his attitude towards his occupation and role expectation by his groups. तो चेंज इन सोशल वैल्यू विल चेंज इज एटीट्यूड। ये थ्योरी यही चीज़ को फोकस करती है कि सोशल वैल्यू में चेंज एंटरप्रेन्योर के एटीट्यूड को डेफिनेटली चेंज करते हैं टुवर्ड्स हिज ऑक्यूपेशन एंड रोल एक्सपेक्टेशन बाय हिज ग्रुप्स। बट देयर इज अनदर एलिमेंट दैट कल्चरल वैल्यूज डिफर फ्रॉम कास्ट टू कास्ट एंड कम्युनिटी टू कम्युनिटी। रिसर्च स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट एंटरप्रेन्योर्स हैव emerged from certain caste and communities. So ऐसा माना जाता है इन आवर ओन कंट्री पारसीज और मारवाड़ीज आर कंसिडर्ड एज बोर्न एंटरप्रेन्योर्स। ये ऐसा माना गया हमारी कंट्री में। सो somebody asked noted film actor late Mr. I.S. Johar that he said that I have heard that entrepreneurs are born not made। ये इसी थ्योरी के बेस पर इसी स्टेटमेंट को, इस मैक्सिम को कहा गया। He humorously replied that he has not seen any entrepreneur taking his birth with a sample of goods produced by him in his hand. It is a good job. However, the fact remains that certain individuals are born with certain characteristics which are in their blood. Such characteristics are God gifts and cannot be developed by any amount of education or training. So, this theory of cultural values says that entrepreneurship emerges as a result of cultural values. Next is their psychological theory. According to this theory, entrepreneurship emerges because of individuals having psychological characteristics like high need for achievement, capacity to withstand social opposition, etc. Sumter believed that entrepreneurs are really motivated by an atavistic will to power, will to found a kingdom or will to conquer. According to McLean, need for high achievement drives individuals towards entrepreneurial activities. ये थ्योरी साइकोलॉजी पर बेस्ड है कि ऐसा पर्सन जिसकी नीड हाई अचीवमेंट है, उस हाई अचीवमेंट की नीड उस इंडिविजुअल की ड्राइव्स को मूव करती है टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़. सो ए पर्सन who
who is doing his activities due to his high achievement need, he is called psychological. Sorry. People with high achievement need are not motivated by monetary rewards only. केवल मॉनिटरी रिवॉर्ड से इस टाइप के एंटरप्रेनर मोटिवेट नहीं किया जा सकता. दिस टाइप ऑफ पीपल रिगार्ड प्रॉफिट एज ए मेजर ऑफ सक्सेस. लेकिन इस टाइप का एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के अमाउंट को, प्रॉफिट के ग्राफ को एज ए मेजर ऑफ सक्सेस रिगार्ड करता है. सो आज के इस वीडियो में 4 थ्योरी हम पढ़ चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप की. बाकी थ्योरीज और नेक्स्ट टॉपिक्स हम वी विल डिस्कस in our next video. Have a nice day.